ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی گئی، الفاظ پہ غور کریں، پھیلائی گئی تاکہ امریکہ کی اس نام نہاد وار اگینسٹ ٹیرر میں شامل ہونے پر ہمیں ہچکچاہٹ نہ ہو، اسے اپنی جنگ کہنے پر قوم آمادہ ہو جائے۔ اس پر بہت پیسہ خرچ کیا گیا، کس بات پر؟ جنگ پھیلانے پر، دھماکے کرنے پر، بندے مارنے پر پیسہ خرچ کیا گیا، اور جھوٹ کا بازار تمام کاروباری میڈیا کے ذریعے سجایا گیا۔ کاروباری میڈیا یہ کسی کے نہیں ہے، یہ سیٹ، یہ اینکرز، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں اور ان کے سیٹوں کی بلیک میلنگ دیکھیں۔ آخر پہ آپ کو بتاؤں گا یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ سسٹم کے اندر کا بندہ کہہ رہا ہے۔ اس کے سامنے فیصلے ہو رہے تھے۔ تمام غنڈہ گردی اور قتل و غارت کو بھی وہی نام دیا گیا جو غزہ اور افغانستان کے مجاہدین کو دیا گیا تھا، یعنی دہشت گرد، یہی نام دیا گیا۔ چاہے وہ کشمیری حریت پسند ہیں، چاہے افغانی لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف، چاہے حماس لڑ رہی تھی، ایک ہی نام دیا گیا، دہشت گرد۔ پھر ڈالر کے زور پہ دہشت گرد تنظیمیں کھڑی کر کے انہیں طالبان کے نام سے پکارا۔ ہائے پاکستان تیری قسمت، ڈالر کے زور پر بدماش اکٹھے کیے گئے اور ان کو اکٹھا کیا گیا، کسی کو داعش کا نام، کسی کو ٹی ٹی پی کا نام، کسی کو کون سا نام دیا گیا، اور پاکستان میں دھماکے کروائے دھماکے تاکہ ہماری نظروں میں دہشت گرد اور مجاہد کا فرق مٹ جائے۔ کوئی ایک ڈرامہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ، اور ہمیں جہاد کا نام لینے والوں سے نفرت ہو جائے۔ اس لیے وہ جو قرآنی آیات نکالی گئی، جہاد کا لفظ، جی 1857 میں ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑنے والوں کو بھی برطانیہ کی حکومت ٹیررسٹ کہتی تھی۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، جو 1857 میں آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے گوروں کے خلاف، وہ رائے احمد خان کھرل ہوں، اس دن میں نے ویلاگ کیا تھا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، وہ جنرل بخت خان ہوں، وہ کوئی بھی ہو، ہندوستان کی آبادی انہیں مجاہد مانتی تھی، جبکہ جو لوگ تھے، اصل میٹر لوگ کرتے ہیں، وہ مجاہد کہتی تھی۔ 18ویں صدی میں امریکہ کی آزادی کے لیے لڑنے والے بھی برطانوی حکومت کے لیے ٹیررسٹ تھے۔ اب جو امریکہ سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، اس کی آزادی کے لیے جو برطانیہ کے خلاف لڑ رہے تھے، جو جارج واشنگٹن کی قیادت میں تحریک آزادی میں شامل تھے، وہ بھی ٹیررسٹ تھے۔ جی امریکہ کی عوام کے لیے ہیرو، اور عوام کے لیے کیا تھے؟ ہیرو تھے۔ انہی کا ایک ٹیررسٹ جارج واشنگٹن امریکہ کا بانی اور صدر بنا۔ ڈالر پہ تصویر ہے، دارالحکومت کا نام ہے، تو برطانیہ نے تو اسے ٹیررسٹ قرار دیا تھا۔ آج کل گورے جس کے بارے میں جو لفظ نکالتے ہیں وہ معاذ اللہ ہمارے لیے آیت بن جاتا ہے۔ عمران خان نامنظور ہے، جو بائیڈن کو نامنظور تھا، بنجمن نیتن یاہو کو نامنظور ہے، نریندر مودی کو نامنظور ہے کہ جی یہ انتہا پسند ہے، یہ طالبان خان ہے، تو برطانیہ نے جارج واشنگٹن کو بھی کہا تھا۔ جی نیلسن منڈیلا بھی ٹیررسٹ کہلاتا تھا۔ جہاں وہاں پہ گورا راج تھا جنوبی افریقہ میں، نیلسن منڈیلا جیل میں تھے، نیلسن منڈیلا کی تحریریں باہر آتی تھیں تو وہ بھی دہشت گرد تھا۔ پھر شمالی افریقہ کا، جنوبی افریقہ کا صدر بنا،
और एक टेररिस्ट ने अमन का नोबेल इनाम पाया। फिर अमन का नोबेल इनाम दिया गया नेल्सन मंडेला को। इनके अपने पैमाने हैं और इनके अपने देखने के जाविये हैं, ताकत के अपने होते हैं। आज भी जहां भी मुजाहिद लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके तमाम साथी मुसलमानों की नज़र में मुजाहिद हैं और अमेरिका और उनके साथियों की नज़र में टेररिस्ट हैं। आज देख लें आज क्या हो रहा है, यानी मकबूजा कश्मीर वाले वो दहशतगर्द हैं। सऊदी ने भी कल परसों जो है ना मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया है। हमारी हुकूमत गौर करना है इन लाइनों पे। मीडिया और बहुत से वो पाकिस्तानी जो खुद को मॉडर्न कहते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और कुफ्र करने वालों की नज़रों में इज्जत चाहते हैं, अमेरिका की सफ में खड़े हैं। अभी इससे पहले वाले वीलॉग में बताया कि अमेरिकी फ़ौज का सबसे बड़ा कसाई, अमेरिकी फ़ौज का सबसे बड़ा कातिल माइकल कुरेला, जिसने इराक में कत्लेआम किया, जो 40 साल से इसराइल की खिदमत कर रहा है, इसराइल का ब्लू आइड बॉय है। हमने चापलूसी में क्या किया, हमने खुशामद में क्या किया, अपने आप को मॉडर्न कहलवाने के लिए, अपने आप को अमेरिका का दोस्त और इत्तेहादी कहलवाने के लिए हमने इस्लामाबाद में उसको बुलाकर ट्रिपल गार्ड ऑफ ऑनर दिया और निशान इम्तियाज़ दिया पाकिस्तान का। किस बात का? कोई सवाल कर सकता है कि माइकल कुरेला को किस बात का निशान इम्तियाज़ दिया गया? और इमरान खान किस बात पर जेल में हैं? उन्हें गंदा पानी दिया जा रहा है वुज़ू के लिए, और माइकल कुरेला को निशान इम्तियाज़ मॉडर्न, हमारे नंबर बने। ये कुत्तों को गोदों में खिलाते हैं, ये बिल्लियों के साथ सोते हैं, ये कुत्तों की चुम्मियाँ लेते हैं ताकि अमेरिका हमें मॉडर्न कहे, बरतानिया हमें मॉडर्न कहे। ये अपनी औरतों के जिस्म दिखाते हैं, ये उन पे जीन्सें पहनवाते हैं अशराफिया, ताकि हमारा नाम बने। जी खड़े हैं और भोले अवाम को अपने साथ इस घिनौने काम में शामिल करने के दर पे हैं। न सिर्फ खुद कर रहे हैं, बल्कि क्या कहते हैं कि अवाम भी जो कि भोले हैं, जो कि अनपढ़ हैं, जो कि 40% गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो 2 रोटी के चक्कर में हैं और डाला गया है। मैंने आपको बताया न तालीम दी गई, न सेहत दी गई, और ना ही जो है वो रोज़गार दिया गया। ये 3 चीज़ें जो है वो नहीं दी गई। ये चीज़ें दी गई तो ये सोचना शुरू कर देंगे। इनके पास तालीम होगी, इनके पास सेहत होगी, इनके पास रोज़गार होगा, तो ये अशराफिया के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। हर मुआशरे की तबाही उसके सरदारान, जो उसके सरदार होते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले और पढ़े लिखे जाहिलों ने लाई। हर मुआशरे की तबाही उसके सरदारों ने। ये पाकिस्तान पे तबाही कौन लाया 78 साल से? मैंने आपको हमेशा 3 नाम बताए हैं, डीडीए अस्करी पार्टी, फौजी पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी। हम यहूदियों को गालियां देते हैं, गोरों को गालियां देते हैं, अमरीकियों को गालियां देते हैं ना, इनके सब के बिजनेस हैं उनके साथ। इनकी बेटियों ने उनके साथ शादियां की हुई हैं, इनकी बेटियों के वो बॉयफ्रेंड्स हैं। लेकिन अवाम के जज्बात बेचना, चूरन बेचना, शहादतें बेचना, हुब्बुल वतनी बेचना, वतन परस्ती बेचना, तराने नगमे अवाम को इस पे लगाया हुआ है। खुद बिजनेस पार्टनर हैं, नवाज शरीफ के बेटे इजराइल के बिजनेस पार्टनर हैं, अमरीकियों के बिजनेस पार्टनर हैं। ये अवाम को इसी उस पे जो है ना वो लगाते हैं। और इसमें शामिल कौन होते हैं? हर मुआशरे की तबाही उसके सरदारान, जर्नैल, सियासतदान, बड़े बड़े पैसे वाले और पढ़े लिखे जाहिलों ने लाई। कुरान जगह जगह इस बात की गवाही देता है, और तारीख भी। ये किसने कहा है पता है? ये कहा है पाकिस्तान के साबिक CGS, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ,
जो मौजूद थे फैसलों में। ये किसने कहा है? ये कहा है लाहौर के साबिक कोर कमांडर ने। ये किसने कहा है? ये कहा है पाकिस्तान के नैब के चेयरमैन ने, और नाम है उसका लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज। ये उसने कहा है। अब बकाया कुछ रह जाता है? ये दहशतगर्दी कौन लाया, किसने फैलाई, क्यों फैलाई, अभी कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कल वादी तीरा में क्या हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 28 जुलाई का दूसरा वीलॉग, सोमवार का दूसरी गपशप और कुछ ताज़ा तरीन खबरें। पहली खबर ये है कि इमरान खान की ज़मानत की जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में लग गया है, और इसकी जो समाअत है वो चीफ जस्टिस याया आफरीदी करेंगे, घुड़सवार। लेकिन ये बात आपको बता दूं कि कोई भी जब अहम केस होता है तो ये चीफ जस्टिस पहले भी ये पतली गली से निकल जाता है, अब भी निकल जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि केस लगने से पहले जो हवालदार मुन्ना है, जो हवालदार मुनीफ फारूक है, उसने कहा है कि इमरान खान जेल में ही रहेंगे। अभी चीफ जस्टिस ने मुकदमा सुनना है और मुनीफ फारूक का पैगाम आ गया है कि इमरान खान जेल में ही रहेंगे। हाँ, हो सकता है कि उनको इस्लामाबाद की नई नवेली जो जेल बनी है, अभी मोहसिन नकवी ने उसका दौरा भी किया है, उसमें शिफ्ट कर दिया जाए। बहरहाल याया आफरीदी से आप किसी अच्छाई की या किसी इंसाफ की तवक्को न रखें। उसके बाद हमें कहा जाता कि अगर हम न होते जर्नैल तो ये पाकिस्तान इराक बन जाता, पाकिस्तान शाम बन जाता, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बन जाता, और फिर बन गया। आप कहेंगे कैसे? कल भी आपको बताया था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि आप तफ्तान के रास्ते ईरान कोई नहीं जा सकता, क्योंकि आपको पता है कि चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके जो है ना मौके पे अरबईन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो मेरी तरह हैं, यानी हवाई जहाज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पैदल जो है ना वो जाते, और ये भी वो ख्याल करते कि उसका स्वाब भी मिलेगा और वो जाकर पुरसा देंगे। तो अब उन पे पाबंदी लगा दी गई है। तो इराक में तो नहीं है पाबंदी, शाम में भी पाबंदी नहीं है। तो हमें तो कहा जाता था, हमें जो खट्टा मीठा चूरन बेचा जाता था वो ये कि आप लोग इराक बन जाएंगे, आप लोग शाम बन जाएंगे। उधर जो पासपोर्ट है वो 96 नंबर पे आ गया और वो नीचे से सबसे ऊपर है। तो बहरहाल वो इराक और शाम किस किस्म के होंगे जो बनने से रुक गए हैं। बहरहाल ये आपके सामने कि उस पे जो है वो पाबंदी लग गई है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि सुहेल वड़ाइच, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो दरियाई घोड़ा है, बल्कि मेरे एक मोहतरम व्यूअर ने लिखा है कि दरियाई घोड़ा नहीं है बल्कि दरियाई खच्चर है, और मुझे नाम पसंद आया कि वाकई ये दरियाई खच्चर है। जिस तरह इसका ढिड मुबारक है और जिस तरह ये स्विमिंग पूल में अदाकाराओं को देखता है, ये साफत नहीं करता, ये पैगाम देता है। ये डिजिटल नाई है, ये मरासी है जो लोगों के घर सद्दे देते हैं कि फ़लाँ की शादी है, फ़लाँ के ख़तने हैं। इसने कॉलम लिखा है और इसने कॉलम में ये लिखा है कि अब निज़ाम 2 हिस्सों में बंट चुका है। यानी उसके कहने का शायद ये मतलब है कि कुछ जर्नैल एक साइड पे हैं और कुछ जर्नैल एक साइड पे हैं, यानी ख्यालात की हद तक। यानी एक जो हिस्सा है वो कहता है कि तमाम मिल बांट के खाएं, केक पड़ा है, छुरियां हाथ में, पाकिस्तान आ गया, किसी ने मुजामत नहीं करनी। आपने कल परसों सुना होगा कि फिर जजों के मुंह भर दिए गए हैं, जजों के इतने अलाउंस बढ़ा दिए गए हैं, इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देना जो है ना वो अवाम ने है, टैक्स तो अवाम ने देना है। अगर ये कर्जा लेंगे IMF से तो सूद अवाम ने उतारना है। इन्होंने क्या करना है? इन्होंने तो सब मिलजुल के खाना है। तो एक हिस्सा कहता है कि मिलजुल के खाओ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मुख्यमंत्री आसिफ जरदारी और बिलावल, ये सारे रल मिल के खाओ। एक हिस्सा कहता है कि नहीं जी, ये जो है वो हमें भी बदनाम कर रहे हैं, खांचे ये लगा रहे हैं, ज़राअत में, चीनी में, कुकिंग ऑयल में, हर चीज़ में ये खांचे लगा रहे हैं और नाम हमारा आ रहा है, यानी बदनाम हम हो रहे हैं। नफ़रत हमारे खिलाफ बढ़ रही है कि आप लोग लेकर आए हैं
یعنی دو سوچیں ہیں، ایک سوچ ہے کہ رل مل کے کھاؤ، اور ایک سوچ ہے، میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ جی مارشل لاء لگاؤ۔ یعنی اب یہ پھر جا رہے ہیں وہ جو اسکندر مرزا اور ایوب خان کا معاملہ تھا۔ اسکندر مرزا نے ایوب خان کے سر پہ مارشل لاء لگا دیا کہ میں اور ایوب خان مل کے موجنگ کریں گے، بندوق ایوب خان کی اور موجیں مل کے کریں گے، میں صدر ہوں۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر اسکندر مرزا کو گھسنے مارے گئے، بھگایا گیا، ایوب خان جو ہے نا وہ صدر بن گئے۔ اب جو یہ معاملات ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں کہ زرداری کو کہا جائے کہ تمہاری صحت جو ہے وہ جواب دے گئی ہے، تمہارے رنگ پسٹن جواب دے گئے ہیں، تم تقریر بھی نہیں کر سکتے، تم موتر پہ قابو بھی نہیں پا سکتے، لہذا اب تم علاج کے لیے دبئی جاؤ، انگلینڈ جاؤ، ہر طرف حرام کٹھا کیا ہوا ہے، جرنیلوں کو بھی پتہ ہے، اور جو فیلڈ مارشل ہیں وہ صدر بن جائیں اور وہ آل ان آل ہوں۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف، آپ کو یاد ہوگا جنرل ضیاء، آپ کو یاد ہوگا ایوب خان، ہمیں تو یاد نہیں ہے، ظاہر ہے ہم تو پیدا ہی بعد میں ہوئے، تو بالکل اب اس جو ہے نا وہ ماڈل پہ وہ عمل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ دریائے خچر خود لکھتا ہے کہ ایوب کا مارشل لاء ناکام ہوا، یحییٰ کا ناکام ہوا، ضیاء کا ناکام ہوا اور مشرف کا ناکام ہوا۔ انہوں نے ہمیں دیا کیا؟ ابھی آپ کو چیف آف جنرل سٹاف کی بتا دی ہے۔ انہوں نے ہمیں دہشت گردی دی، انہوں نے ہمیں بدامنی دی، قتل و غارت دی، انہوں نے کیا دیا ہمیں؟ انہوں نے تقسیم دی، انہوں نے پختونوں کے خون کو اور بلوچوں کے خون کو سستا کر دیا، اور ہمیں کیا دیا؟ بہرحال یہ پھر جو ہے نا اب وہ دریائے خچر وہ اعلان کر رہا ہے کہ 28 جولائی سے جو ہے وہ فوج یا فیلڈ مارشل وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب پھر نیوٹرل ہو گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگی باجوہ کی آخری تقریر، باجوہ نے کہا تھا کہ اب ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں۔ یہ ہر دفعہ اسی طرح کرتے ہیں کیونکہ ہر ایک کی اپنی ڈاکٹرائن ہوتی ہے۔ اب دریائے خچر لکھتا ہے کہ دو جو ہے نا وہ سائڈز ہیں، ایک کہتی ہے مل کے کھاؤ، ایک کہتی ہے مارشل لاء لگاؤ، اور جو فیلڈ مارشل ہیں وہ مکمل طور پہ نیوٹرل ہیں، وہ دونوں کی بات سن رہے ہیں۔ ابھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کون سا جو ہے وہ ہم نے کام کرنا ہے، کیونکہ سارے پروسیس میں عوام تو غائب ہے، عوام تو مائنس ہے، عوام کی تو کسی نے نہیں سننی۔ عوام کی سننی ہوتی تو عوام نے تو 8 فروری کو انقلاب لے آئے تھے۔ عوام باجا، سٹیپلر، کمپیوٹر، ڈھول، کھوتا، گدھا، لوگوں نے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مورے ماری، لوگوں نے تو کمال کر دیا، لوگ تو انقلاب لے آئے تھے، لیکن لوگوں کی کس نے سننی ہے؟ یہاں پہ بھی کبھی یہ نیوٹرل ہیں، کبھی یہ نیوٹرل نہیں ہیں، اور باجوہ نے کہا کہ اب ہم نیوٹرل ہو گئے۔ پھر باجوہ نے کہا جتنی سیاست میں نے کی ہے اتنی سیاست کسی سیاستدان نے بھی نہیں کی، یہ جرنیل ہیں۔ میں نے ایک ویلاگ میں کہا تھا نا کہ جج اور جرنیل حلف اٹھانے کا تکلف نہ کیا کریں، ورنہ ان کی تنخواہیں اور ان کی مراد حرام ہو جاتی ہیں، کیونکہ حلف وہ اور اٹھاتے ہیں، کام اور کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب جی 28 جولائی سے آپ کو مبارک ہو، ساری قوم کو مبارک ہو۔ جس طرح تھرڈ امپائر ہوتا ہے اس طرح کر کے ریویو لیتے ہیں، تو ہم نے ریویو لیا ہے تو اوپر جو ہے نا لکھ کے آ گیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ نیوٹرل ہیں، نہ آؤٹ ہے اور نہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، بس وہ نیوٹرل ہیں۔ یہ گپ چل رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ ڈرونا خواب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی مائیکل کوریلا کو ہار پہنائے جا رہے ہیں، معدنیات دی جا رہی ہیں، عافیہ صدیقی بیچی جا رہی ہے، اسحاق ڈار مارکو روبیو کے جو ہے نا انڈر ویئر میں گھسا ہوا ہے، صرف ڈرونا خواب ایک ہے، عمران خان۔ یہ سارے ایک ہیں، یعنی عمران خان ہر دفعہ جو ہے نا بڑا خوبصورت جو ہے نا کیلکولیٹڈ نام رکھتے ہیں، DDA، ڈفرز ڈاکو الائنس، یہ 78 سال سے ایک ہیں۔ وہ سوراب برکت ایک واقعہ سنا رہے تھے، میں نے بھی پڑھا تھا کہ جاوید میاں داد پہلی سلپ میں کھڑے تھے، تو عمران خان نے جاوید میاں داد کو کہا کہ دوسری سلپ میں چلے جاؤ۔ میاں داد بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے تھوڑا سا غصہ بھی کیا۔ روی شاستری بیٹنگ کر رہے تھے، بہرحال وہ عمران کیپٹن تھا، میاں داد نے بات مان لی، میاں داد دوسری سلپ میں چلے گئے۔ اب پہلی سلپ خالی پڑی ہے، دوسری سلپ میں کھڑے ہو گئے۔ عمران خان نے بولنگ کرائی، روی شاستری کا ایج ہوا اور گیند سیدھی میاں داد کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ تو میاں داد بڑے حیران ہوئے، تو عمران نے کہا تھا کہ ظاہر ہے جو میں سمجھتا ہوں، میں بولنگ کر رہا ہوں، مجھے پچ کا پتہ ہے، میں کیپٹن ہوں، تم بولر نہیں ہو، تم اچھے بیٹسمین ہو،
तो मुझे पता था कि बॉल कहाँ पे पड़ेगी, शास्त्री कैसे खेलेगा और कैच कहाँ पे जाएगा। तो इमरान खान डरावना ख्वाब है। जराइम इतने ज़्यादा हो गए हैं इस रजीम के, 3 सालों में इन्होंने इतने जराइम किए हैं, इतने जराइम किए हैं कि इनको पहले जेल नज़र आती है और उसके बाद इनको रस्से नज़र आते हैं। इमरान खान ने कुछ भी ना किया हो। यानी लोग कहते हैं ना इमरान खान ने क्या किया, मैं कहता हूं इमरान खान ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इमरान खान अब बादशाह और मलका को देखकर ये नहीं कहते कि इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, लोग कहते हैं ये तो नंगे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि यूनान का एक बादशाह अपनी मलका के साथ नंगा निकल आता था बाहर दोनों, और लोगों को कहते थे कि कपड़ों की तारीफ करें, और लोग कहते क्या बात है, क्या टाई कोट है, क्या स्कर्ट है, क्या कपड़े पहने हुए, होते दोनों नंगे थे। इमरान ने यही किया है। इमरान ने हर चीज उतार के टंगनी पे डाल दी है, नंगा डांस हो रहा है, न कोई आइन न कोई कानून। इनको डर लगा हुआ है कि इमरान खान न नवाज शरीफ कुछ करेगा, न जरदारी, न शुजात, कोई भी, उन्हें पता है, न जहांगीर तरीन, न अलीम खान, न सिंध वाले, सारे एक हैं, सारे काने हैं, एक दूसरे के काने हैं, एक दूसरे की वीडियोज हैं इनों के पास, एक दूसरे की फाइलें हैं। इतने जराइम हो चुके हैं कि अब इमरान खान जो है वो डरावना ख्वाब है। और डरावना ख्वाब फिर क्यों है कि जितनी भी रिपोर्ट्स मिली हैं, साबिर शाकिर साहब ने रिपोर्ट की है कि जितनी भी रिपोर्ट्स जा रही हैं ना, अभी मोमेंटम नहीं बन रहा तहरीक का, लेकिन रिपोर्टें नेगेटिव जा रही हैं। वो कहते हैं कि कोई भी वाकया ट्रिगर कर सकता है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, और बांग्लादेश वाला हाल हो सकता है, श्रीलंका वाला हाल हो सकता है, हमें एयरपोर्टों की तरफ भागना पड़ेगा, हमें हेलीकॉप्टरों की तरफ भागना पड़ेगा। और मजे की बात यह है कि इंडिया भी नहीं उतरने देगा, किधर जाएंगे, हेलीकॉप्टर लेकर किधर जाएगा, ये रिपोर्टें जा रही हैं, और दिन ब दिन टांगें कांप रही हैं, और एक दूसरे से मुलाकातें हो रही हैं। मरी आजकल साजिशों का गढ़ बना हुआ है, वहां पे पूरा शरीफ टबर मौजूद है, पूरा शरीफ टबर मौजूद है, क्योंकि हवालदार मुनीब फारूक ही कहते हैं कि पहले बाजवा डॉक्ट्राइन थी, अब हाफिज डॉक्ट्राइन है, और हाफिज डॉक्ट्राइन में जो कल बाहर थे वो आज अंदर हैं, और जो आज बाहर हैं वो कल अंदर होंगे। यानी हाफिज से कोई बैद नहीं है कि वो नवाज शरीफ और जरदारी को भी जेलों में डाल दे, पब्लिक सेंटिमेंट्स लेने के लिए, पब्लिक के जज्बात लेने के लिए, क्योंकि ये तो ज़ाती जागीर है ना, ये कोई हलफ तो है नहीं, ये कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, यहाँ तो ज़ाती जागीर है। यानी जिस तरह आपका 5 मरले का प्लॉट होता है, वहाँ पे आप सिंगल स्टोरी बनाएं, डबल स्टोरी बनाएं, उसको गैराज बनाएं, वहाँ पे सब्जियाँ उगाएं, आपका है भाई, आप जो मर्जी करें। तो ये 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर, ये 4 सूबे, ये 25 करोड़ अवाम, ये ज़ाती जागीर है, स्टिक से हाँका जा रहा है इनको। और ये रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर ट्रिगर कर गया, ये आप KPK में देखें हालात, आप बलूचिस्तान में देखें, सबसे ज्यादा जो नफरत पाई जाती है वो पंजाब में पाई जाती है। लोग कहते हैं कि जी पंजाबी बाहर नहीं निकलते, बिल्कुल नहीं निकलते। सबसे ज्यादा इस रजीम के खिलाफ अगर नफरत पाई जाती है तो वो पंजाब में पाई जाती है, और इस मुख्यमंत्री के खिलाफ पाई जाती है, क्योंकि ये जख्मों पर नमक छिड़कते हैं। लोगों की हालत देखें, इश्तिहार देखें, और कानून बनवा दिया है कि अपनी तशहीर पर जितने भी पैसे खर्च हों कोई नहीं पूछ सकता, कोई अदालत नहीं जा सकता। नफरत है लोगों को, लोग इनका नाम नहीं सुनना चाहते, लोग इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। सोशल मीडिया आप देखते हैं, वो नहीं देखते, उधर रिपोर्टें नहीं जाती, जज सोशल मीडिया नहीं देखते, फौज सोशल मीडिया नहीं देखती, वो नहीं देखते कि क्या हो रहा है हमारे साथ और क्यों हो रहा है। और जो सर पे गंद के टोकरे उठाए हुए हैं वो लीक कर रहे हैं, लीक, गंद ऊपर गंद स्टार्स पे गिर रहा है, गंद वर्दी पे गिर रहा है, दाग लग रहे हैं वर्दी पे 3 साल से, क्योंकि ये नमूने तो 40 साल से यही कर रहे हैं, 40 साल से 45 साल से यही कर रहे हैं, क्योंकि 78 साल है ना, 38 साल हो गए अस्करी पार्टी, 40 साल हो गए नून लीग और पीपल्स पार्टी, नाम बदल बदल के, अब्बे बदल बदल के, प्यो बदल बदल के, जो बाइडेन कभी प्यो, कभी जो है ना ओबामा प्यो, कभी जो है ना ट्रम्प प्यो, प्यो बदल बदल के, कभी माइकल कुरेला प्यो, प्यो बदल बदल के। यानी माइकल कुरेला से बेहतर था कि बेंजामिन नेतन्याहू को डायरेक्ट निशान इम्तियाज देते, ये तो इनडायरेक्ट दिया है उन्होंने, डायरेक्ट देते। अगर आप लोग पहली दफा
चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी प्यारी फैमिली का हिस्सा बने। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो डंडे के साथ बेल आइकन भी दबाएं और लाइक का बटन भी दबा दें। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।